Hello students, myself Khushbu Pandya, Standard 10, Subject Computer and Chapter 1 students, Introduction to HTML. Students, your most of chapters are practical. So your first chapter is the Introduction to HTML and today now I will explain the theory concept. So first of all, first concept is the working of the internet and HTML. Students, first of all, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एच टी एम एल। तो ये जानना पहले ज़रूरी है कि एच टी एम एल एक्चुअल में है क्या। ओके, तो एच टी एम एल इज़ एन हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। द फुल फॉर्म ऑफ एच टी एम एल इज़ द हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, computers are widely used in variety of applications and connected with each other. They can share resources and connected. The computer is known as a computer networks and the collections of multiple computer networks. And on the platform of the internet, a distributed information system exists, which is called World Wide Web. And WW or web in short, the notion of the web was 1991 by Tim Berners-Lee while consulting at CERN, a European Organization for Nuclear Research. http:// and cern.web and cern.ch, the short form of CERN, in Switzerland. The web is repository of multimedia information on the internet platform, and web content in form of web page is explored using the browser special applications to retrieve and view web information. On these web page, links are placed pointing towards different locations, and the links are known as hyperlinks. Clicking on such the hyperlinks, one can redirect himself and intended locations. This operation is known as the following: the hyperlink. Any content such as a text, pictures, graphics, etc. can be embedded with such hyperlink. Students, first of all, HTML जो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसको हम एक वेब लैंग्वेज भी कह सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल 1991 में बाय टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहले स्विट्ज़रलैंड में ये रिसर्च किया था, ये जो लैंग्वेज है वो। ओके, एंड देन वो डेवलप किया, वेब पेजेस डेवलप किए उसके अंदर, एंड वो वेब पेजेस के अंदर हम लिंक भी अटैच कर सकते थे। एंड देन बहुत सारे मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस, हाइपरलिंक्स, पिक्चर्स, ग्राफिक्स एक्सेट्रा, टेक्स्ट, वो सारी चीज़ें हम उसमें अटैच कर सकते थे थ्रू नेटवर्क, इंटरनेट। ओके, तो स्टूडेंट्स शी दैट टिम बर्नर्स-ली, आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका फोटो, जिसने ये HTML लैंग्वेज जो है वो डेवलप की है। ओके, रिमेंबर दैट the content and hyperlinks cannot be directly expressed on the web. Hypertext markup language is needed to describe how a web page should be displayed by a web browser. स्टूडेंट्स, मोस्ट ऑफ ये जो वेब पेजेस हम बनाते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं, वो मोस्टली हम ऑलवेज ब्राउज़र के अंदर ही ओपन कर सकते हैं। यू नो दैट स्टूडेंट्स, आप जब नेट यूज़ करते हो मोबाइल थ्रू या फिर कंप्यूटर थ्रू, तो उसके अंदर आप सबसे पहले ब्राउज़र ही ओपन करोगे, जैसे कि मोजिला है, देन फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, ये सारे ब्राउज़र है स्टूडेंट्स। तो ऑलवेज हम अपने ब्राउज़र में ही नेट ओपन करते हैं, जैसे कि हमारा जो मोबाइल है उसके अंदर भी यूसी ब्राउज़र आता है। ओके, तो ब्राउज़र के अंदर ये जो लिंक्स है वो अटैच होती है, एंड उसके अंदर ही हम हमारा जो सारा कोडिंग है और कोडिंग का आउटपुट है वो ओपन कर सकते हैं। ओके, and then the HTML is considered as a language for describing the web page. HTML is the documentation language to mark the content of web page, heading, title, table, image, etc. अब स्टूडेंट्स, हम कोई भी वेब पेज बनाते हैं या फिर कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो उसके अंदर हमें बहुत सारे फीचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। फॉर एग्जांपल then titles, tables, images, etc.
and all the internet browsers accept the content written using the HTML code. स्टूडेंट्स HTML कोड जो है वो मैं आपको उसके भी प्रोग्राम के वीडियो शेयर करूँगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका कोड जो है वो किस में लिखते हैं. नोटपैड के अंदर HTML का कोडिंग लिखा जाता है एंड दैन ब्राउजर्स के अंदर स्टूडेंट उसका आउटपुट हम देख सकते हैं, बिकॉज सारे मशीन इंडिपेंडेंट है ये जितने भी टैग है वो, एंड इंटरनेट ब्राउजर्स जितने भी है वो सारे HTML कोड को एक्सेप्ट करेंगे. ओके, HTML is a kind of markup language. So markup language is a set of tags, enables additional informations and other files and tags. The HTML is the most popular markup language, offers a fixed set of tag. अब स्टूडेंट्स जैसे कि हम एक्सेल यूज़ करते हैं तो एक्सेल के अंदर जैसे फॉर्मूला होती है ना स्टूडेंट्स, हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसके लिए फंक्शन होते हैं स्पेशल मैथमेटिकली, तो हमें उसका ही यूज़ करना होता है जब भी हमें हमारा कोई वर्क करना है तो. ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स HTML जो लैंग्वेज है उसमें एक फिक्स टैग आते हैं, वन टाइप ऑफ एक टैग जिसको हम बोलते हैं, वो टैग का यूज़ करके ये हमारी जो साइट है वेबसाइट एंड वेब पेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं. एंड HTML इज डिराइव फ्रॉम ऑफ HTML. HTML स्टैंड फॉर स्टैंडर्डाइज जनरल मार्कअप लैंग्वेज which was developed by the International Organizations for Standard ISO. The full form of ISO, International Organizations for Standard, in 1986 to facilitate the sharing of machines readable documents. मतलब ये जो मशीन डिपेंडेंट है ये डॉक्यूमेंट्स उसको ISO ने 1986 में ये फैसिलिटी जो है वो डेवलप की थी. एंड देन HTML कोड इज कॉम्बिनेशन ऑफ कंटेंट डिस्प्ले द वेब पेज यूजिंग द वेब ब्राउजर्स एंड टैग. मैंने आपको पहले ही स्टूडेंट्स बोला कि हम HTML टैग को वेब ब्राउजर्स के अंदर ही देख सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट सिंपल HTML डॉक्यूमेंट्स. अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करती हूँ कि HTML टैग जो है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, उसका एंडिंग कैसे होता है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम दिया है जो मैं आपको बताऊँगी. एवरी HTML प्रोग्राम स्टार्ट विथ द HTML टैग. और स्टूडेंट्स इसका एक रूल्स है कि आपको कोई भी टैग जो है वो स्पेशली ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होता है, और जो टैग आप स्टार्ट करते हो वो टैग आपको ओवर करना है, वो कंपलसरी है, ये उसका रूल्स है, तो रिमेंबर दैट स्टूडेंट्स. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो HTML है स्टूडेंट्स. ओके, एंड देन हेड है एंड देन टाइटल टैग है स्टूडेंट्स. तो HTML तो लिखना ही है, देन हेड टैग और देन टाइटल. स्टूडेंट्स ये स्टेप याद रखना आप लोग. एंड देन जो टैग स्टार्ट करते हो स्टूडेंट्स ओवर करना है. यहाँ पे टाइटल स्टार्ट किया है तो नीचे ओवर भी किया है स्टूडेंट्स. एंड देन head and then body tag. Body tag is the students main tag of in HTML. यहाँ पे स्टूडेंट्स देखो H1 रेनबो ऐसे एक कोई भी नाम दिया है एंड देन H1 यहाँ पे ओवर भी किया है, आप देख सकते हो. ओवर करने के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पे स्लैश की रिक्वायरमेंट रहती है, आप देख सकते हो. ओके, एंड देन H1 ओवर किया है. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स P टैग लिया है. P टैग का मीनिंग होता है यहाँ पे आप देख सकते हो पैराग्राफ टैग. जब भी आप कोई भी पैराग्राफ लिखते हो उसमें तो उसके लिए P टैग का यूज़ करना होता है. ओके, एंड देन P टैग नीचे ओवर कर दिया है. देन देख सकते हो स्टूडेंट सेकंड पैराग्राफ भी उसी तरीके से P टैग के अंदर लिया है एंड देन बॉडी टैग एंड HTML टैग ओवर किया है. स्टूडेंट्स मैं आपको इसके प्रैक्टिकल्स वीडियोस भी सेंड करूँगी प्रोग्राम के. ओके, एंड आपको एवरी थियरी एंड प्रैक्टिकल्स बहुत स्टूडेंट्स आपको अंडरस्टैंड ही करना है, बिकॉज आपके पास अगर अभी लैपटॉप या कुछ घर पे कंप्यूटर हो तो आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन अंडरस्टैंड. ओके, द नेक्स्ट स्टूडेंट्स इज द ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक स्पेशल HTML एलिमेंट्स का एक फिगर दी है जिसके अंदर स्टूडेंट्स ओपनिंग टैग, जैसे कि हमने HTML टैग पहले लिखा है ब्रैकेट के अंदर वो ओपन किया है, देन बीच में हम हमारा कंटेंट लिखेंगे, जैसे कि रेनबो लिखा था वो कंटेंट था. एंड देन क्लोजिंग टैग. क्लोजिंग टैग में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्लैश है वो किया है, उससे आप क्लोजिंग कर सकते हो अपने टैग का. क्लियर. देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे स्पेशली एक पूरा देखो यहाँ पे एक पूरा प्रोग्राम जो अभी मैंने आपको ऊपर ही एक्सप्लेन किया वो दिया है.
ओके। एंड कोई भी इसको सेव कैसे करना है स्टूडेंट्स, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी प्रैक्टिकली, ताकि आपको पता चले उसको सेव कैसे करना है स्टूडेंट्स। बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी HTML प्रोग्राम सेव करने के लिए आपको पहले अपने प्रोग्राम का नेम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम दिया है P1, डेट मीन्स प्रोग्राम 1, एंड देन लास्ट में .html स्टूडेंट्स वो लिखना कंपलसरी है, बिकॉज वो उसका एक्सटेंशन है एवरी प्रोग्राम का, तो आपको .html कंपलसरी लिखना है। क्लियर? देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये देखो, ये आउटपुट है अबाउट रेनबो, मतलब जो प्रोग्राम हमने किया है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको जो प्रैक्टिकल्स के वीडियो शेयर करूँगी, उसमें मैं आपको प्रोग्राम को कैसे राइट करना है नोटपैड के अंदर, उसको सेव कैसे करना है, एंड देन उसको आउटपुट उसका कैसे देखना है ब्राउजर के अंदर, वो सारी चीज़ें मैं आपको उसमें सिखा दूंगी। ओके। नेक्स्ट, HTML टाइटल, हेडिंग स्टाइल, एंड देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे हेडिंग स्टाइल है, तो हेडिंग स्टाइल में मैं स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक तो कोई भी प्रोग्राम स्टूडेंट्स कॉमन ही रहेंगे, जैसे कि HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी। ओके। एंड हेडिंग स्टाइल की बात करूँ तो स्टूडेंट्स H1 से लेके H6 तक हेडिंग साइज है पूरी। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि हेडिंग साइज H1 से H6 तक है, तो सबसे बिगेस्ट हेडिंग साइज H1 होगी एंड सबसे स्मॉलेस्ट हेडिंग साइज H6 होगी। क्लियर? द नेक्स्ट कंसेप्ट देखो, ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको आउटपुट भी दिखाया है हेडिंग साइज का। देखो रेनबो जो H1 साइज में था तो सबसे बिगेस्ट साइज आई, एंड सबसे लास्ट में देखो सबसे H6 साइज है तो वो स्मॉलेस्ट आई। ओके। देन नेक्स्ट, बेसिक टैग्स एंड टैग, पैराग्राफ टैग। स्टूडेंट्स पैराग्राफ टैग से आप पैराग्राफ कर सकते हो। लाइन ब्रेक, आपको एक लाइन से एक स्टेप नीचे जाना है स्टूडेंट्स, तो आप BR टैग का यूज कर सकते हो, जिसको कहते हैं लाइन ब्रेक। ओके। एंड देन नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो ये प्री का मतलब होता है आपको लाइन को थोड़ा प्री में लिखना है। ओके। देन स्टेप बाय स्टेप लिखना है, तो आप इस टैग का यूज कर सकते हो, प्री टैग। बी दैट मीन्स बोल्ड, स्टूडेंट्स ये तो वर्ड के अंदर भी आता है, बोल्ड। बी दैट मीन्स बोल्ड, यू दैट मीन्स अंडरलाइन, एंड आई दैट मीन्स इटैलिक्स। ओके, ये 3 तो उसमें भी आता है वर्ड में भी, तो आपको पता ही होगा। एंड टैग, तो ये सारे टैग जो है वो स्टूडेंट्स आपको यूज़ करनी है। यहाँ पे स्पेशली एक एलिमेंट्स एंड डिस्क्रिप्शन दिया है स्टूडेंट्स, तो ये खास आप लोग एक बार रीड कर लेना, आपके पास बुक है घर पे। तो स्मॉल एंड स्मॉल, मतलब आपको कोई भी टैग स्मॉल करना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले स्मॉल लिखना है, बीच में कंटेंट लिखना है, एंड देन टैग ओवर कर देना है। ओके। सेम टू सेम बिग, एंड देन सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, एंड ये। तो स्टूडेंट्स ये जो टैग है उसके प्रोग्राम के वीडियो में आपको शेयर करूंगी, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके। अभी हम थियरी कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। देन एंकर टैग स्टूडेंट्स, तो एंकर टैग जो है वो स्पेशली, एंकर टैग से क्या होता है, आपको कोई लिंक देनी है तो आप उसे लिंक जो है वो दे सकते हो। ओके। यहाँ पे देखो AHREF = P4.html। अब स्टूडेंट्स लिंक कैसे देनी है, आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा, बट उसके भी वीडियो में आपको शेयर करूंगी लिंक कैसे देनी है, तो क्योंकि उसके लिए तो मुझे प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। अभी तो आपको थियरी कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर रही हूँ ओनली। ओके। देन स्टूडेंट्स ये अभी आपके 10th स्टैंडर्ड में मोस्टली चैप्टर्स, ऐसे कहा जाए तो मोस्टली चैप्टर्स प्रैक्टिकल है, तो मोस्टली मैं आपको वीडियो प्रैक्टिकल करके ही दिखाऊंगी और उसके ही वीडियो सेंड करूंगी। ओके, ताकि आपको प्रोग्राम कैसे राइट करना है, उसको सेव कैसे करना है, एंड देन उसको आउटपुट उसका कैसे देखना है स्टूडेंट्स, तो ये आपको ज़्यादा पता चलेगा। ओके। एंड देन उसके बाद जो भी उसमें आता जाएगा उस तरीके से मैं आपको टैग एक्सप्लेन करूंगी। ओके, बिकॉज आपके थियरी में भी टैग ही है सारे, तो आपको ये कैसे करना है स्टूडेंट्स वो मैं आपको प्रोग्राम्स के अंदर ही डिस्प्ले करूंगी। क्लियर? ओके, थैंक यू।